देखना शुरू कर दिया है BRG न्यूज़। दिन भर की अहम और बड़ी खबरों के साथ BRG न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पे। शहर में दूसरे चरण के टीकाकरण की हुई शुरुआत। शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और गोत्री अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने लिया कोविशील्ड का टीका। FGI के 16वें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस समारोह का आयोजन। LMB ग्रुप के चेयरमैन चिरायु अमीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बत्तीसवें मार्ग सलामती सप्ताह की आज से शुरुआत। बाइक रैली के जरिए ट्रैफिक नियमों की जागृति फैलाने की गई पहल। अब देखते हैं खबरें विस्तार में। वडोदरा के गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल में आज बीजेपी के शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर शीतल मिस्त्री ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराया। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में देश समेत गुजरात राज्य में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया गया। तब आज दूसरे चरण में दूसरे क्रम के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है। गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल में आज एक तरह से कहे तो गुजरात में सबसे पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख और बड़ौदा के मेडिकल क्षेत्र के अग्रणी डॉक्टर विजय शाह और गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने आज कोविशील्ड का टीका लिया। आम तो મને જે રસી મળી છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે નથી આપવામાં આવી, પરંતુ આજ હોસ્પિટલમાં હું 11 વર્ષથી ડૉક્ટર તરીકે સેવા આપું છું। કોરોનાના સમયગાળામાં અહીંયા હોસ્પિટલના સેવા કાર્યમાં હું જોડાયેલા રહ્યો છું અને કોરોનાના વોરિયર તરીકે આરોગ્ય કર્મચારી તરીકે આજે મને રસી આપવામાં આવી છે। હું આ તબક્કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને અમારા આરોગ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કારણ કે આરોગ્ય કર્મચારીએ ક્યારેય પણ એવું વિચાર્યું નહોતું કે આટલી ઝડપથી આ રસી મળશે। રસી છે તે નિઃશુલ્ક મળશે અને આ રસીના માધ્યમથી આરોગ્ય કર્મચારીઓ પોતે પણ એનાથી એમને લાભ થશે। આજે પહેલો ડોઝ અમને આપવામાં આવ્યો છે, બીજો ડોઝ પણ 28 દિવસ પછી આપવામાં આવશે। જે પ્રકારની વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા થઈ છે, તમને OTP આપવામાં આવે છે। OTP જેની પાસે હોય, આધાર કાર્ડ હોય તે લોકોને જ માત્ર રસીકરણ આપવામાં આવે છે। તો સાથે સાથે અન્ય તબક્કાઓ માટે અત્યારે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન પણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને રજિસ્ટ્રેશનના માધ્યમથી જેમ જે તબક્કા થશે એ તબક્કામાં સમગ્ર રાજ્યના મોટાભાગના લોકોને આ રસીકરણનો લાભ આપવાનો છે। ત્યારે પહેલી વખત સમજતા થયા પછી આપણે રસીકરણ થયું છે, પરંતુ માત્ર એક નાનું ઇન્જેક્શન થાય એટલી જ એમાં આપણને દુઃખ થતું હોય છે અને 30 મિનિટ આપણે અહીંયા બેસીએ, 30 મિનિટ આપણે એમના ઓબ્ઝર્વેશનમાં રહીએ અને 30 મિનિટ પછી આપણે પોતાનું કામ કરી શકીએ। એક સરસ મજાનો એમણે ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપેલો છે। કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસર આપણા ધ્યાનમાં આવે તો આપણે ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર એમની સાથે વાત પણ કરી શકીએ છીએ। ત્યારે હું આ તબક્કે રાજ્ય સરકારને અને કેન્દ્ર સરકારને ખાસ કરીને આરોગ્ય કર્મચારીઓ મારફતે, ડૉક્ટરો મારફતે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું અને એમનો આભાર માનું છું। नागरिकों में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन में भरोसा बढ़ाने और वैक्सीनेशन की अफवाहों को खारिज करने आज बड़ौदा के 2 दिग्गज डॉक्टरों ने वैक्सीन का डोज लिया था। आपको बता दें, आज से बड़ौदा शहर जिले के करीबन 7 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण का प्रारंभ हो चुका है। आज एडमिशन नोडल ऑफिसर तरीके एक रसी मूकी અને कोरोना वॉरियर के जो गोत्री मेडिकल कॉलेज में छेल्ला 8-9 महीनाथी कार्यरत है અને લગભગ 7,800 જેટલા દર્દીઓ અમે ટ્રીટ કરી ચૂક્યા છે। એમના ઉત્સાહમાં વધારો થાય, એમનામાં આત્મવિશ્વાસનો સંચાર થાય એ આશયથી આજે મેં પણ વેક્સિન લીધી છે। આ કોરોના વેક્સિન એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયત્નોથી ભારતમાં ઉત્પન્ન થયેલી સ્વદેશી વેક્સિનો છે, જેમાં કોવિશિલ્ડ અને કોવેક્સિન વેક્સિન છે। ગોત્રી ખાતે કોવિશિલ્ડ વેક્સિન વાપરવામાં આવી છે, જે વાયરલ વેક્ટર આધારિત વેક્સિન છે, જેની આડઅસરમાં ફક્ત સામાન્ય તાવ આવવો અથવા ઇન્જેક્શન સાઇટ પર દુખાવો થવો અથવા શરીરમાં કળતર થવું, જે 24-48 કલાક માટે રહેતી હોય છે, એ પણ ખૂબ જૂજ લોકોમાં નોંધાતી હોય છે। તેથી આ વેક્સિન ઘણી સેફ છે અને એ સેફ હોવાના લીધે પૂરો સ્ટડી કરીને આજે મેં પોતે વેક્સિન લીધી છે। આ વેક્સિન ઘણી સેફ છે અને કોઈ નાગરિકોએ કોઈ
વોટ્સએપ કે ફેસબુકના ગોસિપિંગ અથવા રૂમર્સમાં આવવાની જરૂર નથી અને જે કોરોના વોરિયર્સ અને જે નાગરિકો વેક્સિન લઈ રહ્યા છે એમને સાંત્વના આપવાની જરૂર છે અને આ વેક્સિન ડ્રાઈવને આપણે સફળ બનાવીએ, કોરોના પર વિજય મેળવીએ એવી શુભેચ્છા રાખું છું। फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज के 16वें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस समारोह का आज आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस अवार्ड समारोह में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। एलेम्ब्रिक ग्रुप के चेयरमैन चिरायु अमीन को एफजीआई की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बड़ौदा में इंडस्ट्री क्षेत्रों के लिए कार्यरत संगठन एफजीआई की ओर से अवार्ड फॉर एक्सीलेंस समारोह आयोजित किया गया था। 16वें इस अवार्ड समारोह में 14 उद्योगपतियों को अवार्ड से नवाजा गया। खास करके राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ऑनलाइन माध्यम से इस अवार्ड समारोह में जुड़े थे। एलएमबी ग्रुप के चेयरमैन चिरायु अमीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस समारोह में दिया गया, जिससे उन्हें सम्मानित किया गया। राज्य कक्षा के मंत्री योगेश पटेल के हाथों से यह अवार्ड सम्मान दिया गया था। आपको बता दें कि एफजीआई के इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए भिन्न कैटेगरी में 260 अर्जियां आई थी, जिनमें से जूरी कमेटी की ओर से इस साल के अवार्ड विजेताओं को चुना गया। इसमें अवार्ड समेत सर्टिफिकेट के साथ धनराशि का चेक दिया गया था। करीबन 13 कंपनियों को इस समारोह में अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर एफजीआई के सभी आला अधिकारी खास मौजूद रहे थे। इस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित हुए चिरायु अमीन ने मीडिया से खास बातचीत की। It's a great moment in my life to be recognized and given this award by all the institutions of Baroda, which not only covers Baroda but quite a lot of part of central Gujarat. And our business, our family has been associated with this for many years. Historically, the Federation was in town, brought over here many years back, and it has survived and weathered a lot of storms during last more than 100 years. We have grown in this town. We are more than 110 years old institution, and we are proud to be part of this city and part of this federation. They have done a great job for taking care of interest of people, tradesmen and industrialists of the region, and I wish them all the success, and I thank them for conferring me this award. हर साल लोगों के बीच यातायात से जुड़े नियमों को बताने के लिए जनवरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस साल वडोदरा शहर में सड़क सुरक्षा सप्ताह को हटाकर 1 महीने के लिए कर दिया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा रैली भी निकाली गई। हर साल पूरे भारतवर्ष में जनवरी माह में राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते इस साल भी कोरोना संक्रमण के बीच वडोदरा शहर में 32वां मार्ग सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल ट्रैफिक मार्ग सलामती महीना 2021 की शुरुआत प्रताप नगर स्थित तालीम केंद्र पुलिस मुख्यालय से बाइक रैली निकालकर आज रोज किया गया है। राज्य भर में 18 जनवरी से राष्ट्रीय मार्ग सलामती सप्ताह की शुरुआत की गई थी। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए सप्ताह के बदले 1 महीने तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नायक पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी गांधीनगर अथवा आरटीओ वडोदरा समेत ट्रैफिक शाखा के इंस्पेक्टर तथा विभिन्न शाखाओं के अध्यक्ष, ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक जवान भी मौजूद थे। इसी के साथ ही विविध एजेंसियों ने आगे कोई सड़क दुर्घटना न हो और लोग अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ऐसी जागरूकता नागरिकों के सामने रखी है। साथ ही में कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने और पुलिस जवान तथा अधिकारियों ने ट्रैफिक के नियमों का पालन करने व कराने के लिए शपथ भी ली है। 32मो मार्ग सलामती महीनो जे छे ए वधारे आपणे असरकारक रीते करीए ए माटे एनो हेतु छे के सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मार्ग सलामती माटे तमाम जागरूक थाय अने सलामती ने ध्यान में राखीने आपणे आपणुं मार्ग उपरनुं जे वर्तन छे ए
સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને કરીએ. આપણે કોઈ પણ વાહન ચલાવીએ, વાહનમાં મુસાફરી કરીએ, એ તમામ વખતે સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કામગીરી કરીએ. નિયમનેથી બચવા માટે અથવા તો દંડ નહીં ભરવા માટે નહીં, પણ આપણી અને આપણા પરિવારોની સલામતી માટે તમામ નિયમોનું પાલન કરીએ એ હેતુથી આ સમગ્ર મહિના દરમિયાન આનું જે ઉજવણી છે એનો આજે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મહિના દરમિયાન જુદા જુદા કાર્યક્રમો કરવામાં આવશે, જેમાં અલગ અલગ સ્થળોએ જાહેર જનતાને ટ્રાફિકના નિયમો વિશે અને ખાસ કરીને સેફટીના નિયમો વિશે જાગૃતતાની માહિતી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ જે ટ્રક ડ્રાઈવર્સ છે એ લોકોની આંખોનું ચેકિંગ કરવામાં આવશે. મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે. જુદી જુદી જગ્યાએ હાલ જે કોરોનાની પરિસ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં લઈને માસ્કનું વિતરણ, સેનિટાઇઝેશનનું વિતરણ, ત્યારબાદ ફ્રી પીયુસી કેમ્પ, જે લોકો માર્ગ સલામતીના અને ટ્રાફિકના રૂલ્સ ફોલો કરે છે એમને ફ્રી પીયુસીનું ચેકિંગ કરાવી દેવામાં આવશે. આ રીતના અલગ અલગ તમામ કાર્યક્રમો આ આખા સમગ્ર મહિના દરમિયાન કરવામાં આવશે. धार्मिक स्थल अंबाजी मंदिर में कोरोना काल के दौरान छोटे पैकेटों का प्रसाद वितरण को रोक दिया गया था, जिसे आज से श्रद्धालुओं के लिए आरंभ कर दिया गया है. पवित्र यात्रा धाम अंबाजी से आज देवस्थान ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रसाद के छोटे पैकेट को फिर से शुरू कर दिया है. कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद एहतियातन कदम के चलते अंबाजी मंदिर प्रशासन ने प्रसाद के छोटे पैकेटों की बिक्री बंद कर दी थी. अब जब कोरोना संक्रमण पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है, तब आज से भाविक भक्तों को छोटे पैकेट में भी माताजी का प्रसाद मुहैया होगा, जिससे दर्शन करने आते भक्तों के लिए आज राहत की खबर आई. अंबाजी से संवाददाता प्रवीण वंजारा की रिपोर्ट. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका BRG न्यूज में. आज हम बताएंगे एक ऐसी प्रकृति प्रेमी के बारे में जिनने विभिन्न तरह के पौधे उगाकर टेरेस गार्डन तैयार किया है. वडोदरा में कई प्रकृति प्रेमी हैं जो विशेष रूप से पर्यावरण के बारे में जानते हैं. ऐसी एक महिला है रीताबेन पटेल, जिनकी उम्र 54 साल है, जो शहर के मांजलपुर इलाके में रहती हैं. वे पर्यावरण की बहुत शौकीन हैं. उन्होंने टेरेस गार्डन भी बनाया है, जिसमें बोनसाई पौधों का संग्रह है. रीताबेन दिन में 3 से 4 घंटे फूलों और पौधों की देखभाल करने में देती हैं और अपने 2 दामादों और उनके बच्चों द्वारा इस कार्य में उनकी मदद की जाती है. રૂપલ સોસાયટી માંજલપુરથી રીટા પટેલ રહું છું અને મારા મકાનમાં જુદા જુદા પ્લાન્ટ્સ છે, 600થી ઉપર પ્લાન્ટ્સ છે અને શંખમાં ને એમાં બી વધારે મેં ડેવલપ કર્યા છે. ફ્રૂટમાં બી બધા ડેવલપ કરેલા છે.
એમાં રોજનો મારે 3 થી 4 કલાક સવારના રોજ આપવો પડે છે. પરિવારનો બહુ સાથ છે એટલે જ આટલો ડેવલપ થયો છે. પરિવાર મને બિલકુલ અંદર ઘરમાંનું મારે કોઈ એ જ નથી, બહાર જ બધું હું ડેવલપ કર્યા કરું છું. विभिन्न प्रकार के फूलों के अलावा उनके संग्रह में चीकू, मौसम्बी, जंबुड़ा, अनार और अमरूद भी शामिल हैं। रीताबेन ने इस छत के बगीचे को बहुत सावधानी से सजाया है। विभिन्न प्रकार के शंख के साथ साथ चट्टानों में पौधे लगाए गए हैं। पक्षियों के लिए घोंसले भी यहाँ लगाए गए हैं। उनका कहना है, हमने विभिन्न प्रकार के पपीते के पेड़ों को बोनसाई के साथ साथ एक लटके हुए बगीचे, विभिन्न प्रकार के शैम्पू पौधों, मोम, विभिन्न प्रकार के बेलों और 12 रंगों के एक बुंगेविलिया के रूप में उगाया है। उन्होंने बोनसाई पौधों को डिजाइन कराने के लिए एक कोर्स भी किया है और इस तरह अपने घर को सजाने के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के लिए दूसरों को एक विशेष संदेश दिया है, जहां लोग इस तरह से अपने घर में एक बागीचा बना सकते हैं, प्राकृतिक सुंदरता के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, हवा के माध्यम से एक ताजा जीवन जी सकते हैं। મમ્મી બધું સરસ મહેનત કરીને બધું સરસ કર્યું છે અને એમને અમે પૂરેપૂરો લાભ લઈએ છીએ. અમે રોજે સવારે ગાર્ડનમાં બેસીએ છીએ અને બધું સરસ તાજી હવામાં બેસીને બધું એન્જોય કરીએ છીએ. છોકરાઓ પણ એટલું જ એન્જોય કરે છે. બહારથી ગેસ્ટ આવે તે બધા સરસ રીતે એન્જોય કરે છે. અને ફ્રૂટ્સ ને બધું મમ્મીએ જે ઘરે વાવ્યું છે તેમને ઓર્ગેનિક બી મળે છે, પ્લસ ચોખ્ખું બી હોય બધી રીતે એમ. અને બહુ બહાર જવાનું શાકભાજી કે ફ્રૂટ્સમાં જરૂર પડતી નથી. બધું મમ્મી ઘરે સરસ રીતે ઓર્ગેનિક વાવીને અમે સરસ આમને આપે છે અને બધું. सांवली में स्थानिक चुनाव की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है, जो जोरों शोरों से की जा रही है। आइए देखते हैं सांवली से संवाददाता मीत काचिया की ये खास रिपोर्ट। वडोदरा जिले के सांवली तालुका में स्थानिक चुनाव को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने चुनाव के प्रचार के दौरान कई नागरिकों से मुलाकात भी की थी, अथवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर किया था। इसी के साथ ही प्रचार को किसान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ शुरुआत किया था। कांग्रेस खेडूत बचाओ, खेडूत बचाओ। वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय समाज में परंपरागत पगड़ी बांधकर फूलहार तथा तलवार देकर उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के विरोध में है और इसी आरोप के साथ सभा को संबोधित भी किया था। इस कार्यक्रम में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा, जिला प्रमुख सागर कोको, जिला पंचायत उप प्रमुख मुबारक पटेल, तालुका कांग्रेस प्रमुख विजय सिंह वाघेला और भदरवा सरपंच महेंद्र सिंह तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई सारे नागरिक भी हाजिर थे। जनसंपर्क अभियान भागरूपे आज वडोदरा जिला में भादरवा जिला पंचायत बैठक पर जनसंपर्क कार्यक्रम करवामां आवी रह्यो छे। अहींया स्थानिक लोकोने, युवानोने, खेडूतोने मळ्या ने दरेकनी एक ज समस्या छे के सरकार मुठ्ठीबळ लोको माटे काम करे छे। खेडूतोने उत्पादनना पूरता बजार भाव नहीं मळता, सिंचाईनी सगवड नहीं, खेडूतोने जे रक्षण मळवुं जोईए ए नहीं मळी रह्युं अने काळा कायदा आववाथी खेडूतोने पोतानुं भविष्य धूंधळुं देखाई रह्युं छे। ए ज रीते अहींया उद्योगों तो आव्या पण स्थानिक युवानोने रोजगार नहीं मळी रह्यो अने रोजगार मांगवा जाए तो पोलीस द्वारा दमन करवामां आवे छे।
એટલે ઉદ્યોગપતિઓના ખોળે બેઠેલી સરકાર અહીંયાના યુવાનોને રોજગાર આપવામાં પણ નિષ્ફળ રહી છે અને ઉલટાનું એમની ઉપર જુલમ ગુજારી રહી છે. મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી અને શિક્ષણ આરોગ્યના પ્રશ્નોથી આ વિસ્તાર ખૂબ જ તકલીફ છે. એવા સંજોગોમાં આવનારા સમયમાં સૌ સાથે મળી ને લોકોના મનની વાત, જનની વાતને ઉજાગર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને એ જ રીતે બધા સાથે મળી અને લોકોના પ્રશ્નોના નિવારણ માટે આવનારી ચૂંટણીઓમાં અને ત્યાર પછી સત્તા સ્થાને કોંગ્રેસ આવે ત્યારે એના માટેની એક ચોક્કસ नीति साथे आगळ वधवानो दृढ़ संकल्प. जेसीआई इंडिया के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन इस साल बड़ौदा में किया जाने वाला है. 20 से 24 जनवरी के दौरान बड़ौदा की एक निजी होटल में इसका आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत कल होने वाली है. कल राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ भाई पटेल इसकी शुरुआत करवाएंगे. जेसीआई इंडिया के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन इस साल बड़ौदा में होने जा रहा है. 20 से 24 जनवरी के दौरान बड़ौदा के निजी होटल में इसका आयोजन होगा. हर साल भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में आयोजित होने के बाद करीबन 27 सालों के बाद ये अधिवेशन बड़ौदा में होने जा रहा है. इसमें साल 2021 के लिए जेसीआई के पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ सालाना बजट पर निर्णय लिए जाएंगे, जबकि संस्था की सालाना प्रवृत्तियों की भी योजना बनाई जाने वाली है. जेसीआई इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अनीस मैथ्यू की अगुवाई में यह अधिवेशन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संबोधित होगा. 65th नेशनल कन्वेंशन है या जो जेसीआई बड़ौदा अलकापुरी ने बड़ौदा ग्रैंड मर्क्यूरी होटल में होस्ट करा रहा है और पूरा इंडिया से 25 जोन है. जोन का जोन पर्सन सब इधर आता है. बाकी सभी मेंबर्स वो ऑनलाइन और वर्चुअल मोड से ये दिखाता है और ये 2020 का पूरा एक्टिविटीज़, अपना बजट, अपना सभी प्रिपरेशंस वो पूरा डिटेल में वो डिस्कस करेगा और उसके बाद 2021 का पूरा प्लान ऑफ एक्शन और बजट भी इधर से बनाता है. ये अपना नेशनल कन्वेंशन का मेन बिजनेस है. उसके बाद 2021 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इलेक्शन भी इसके साथ से चल रहे हैं. कल से शुरू होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत राज्य के ऊर्जा मंत्री सौरभ भाई पटेल करवाने वाले हैं. आज इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देती पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी. आज रोज सूर्या पैलेस खाते पत्रकार मित्रों ने हाजरी में भारतीय जूनियर चेम्बर 65मा राष्ट्रीय अधिवेशन विगतवार माहिती आपवामां आवी. आ अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अने अन्य चेप्टर प्रेसिडेंटो द्वारा આવતા વર્ષનું બજેટ અને આવતા વર્ષના પ્રોગ્રામોની જાહેરાત થશે અને આ વર્ષમાં કરેલ કાર્યક્રમોની લેખાજોખાથી જે મિત્રો ખૂબ સારું કાર્ય કર્યું છે એ લોકોને એવોર્ડથી નવાજવામાં આવશે. એની એવોર્ડ સેરેમની પણ રાખવામાં આવી છે અને આ વર્ષનું જે કાર્ય કર્યું છે એનો ખર્ચ એટલે કે એનું એકાઉન્ટ્સ પણ આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં પાસ કરવામાં આવશે. અને આ અધિવેશન હાઇબ્રિડ છે, ન્યૂ નોર્મલમાં છે એટલે લિમિટેડ મિત્રોની હાજરીમાં બીજા બધા મિત્રો વર્ચ્યુઅલ ઓનલાઈન પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપશે અને આ કાર્યક્રમને 4 દિવસનો 20મી થી 24મી સુધીનો કાર્યક્રમ છે એને માણશે. આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનું ઉદ્ઘાટન માનનીય ઉર્જા મંત્રી ગુજરાત રાજ્ય શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવશે અને 25 વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા ઝોન પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા આ આખા કાર્યક્રમનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે. એ લોકો એમના સ્ટેટને, એમના ઝોનને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે. वडोदरा में एमडी ड्रग्स के काले कारोबार को एसओजी पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके से एक महिला को ड्रग्स सप्लायर के तौर पर गिरफ्तार किया गया है. आइए देखते हैं कि और कौन कौन शामिल है इस महिला के साथ इस खास रिपोर्ट में. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक शहर के कारेलीबाग एरिया में बहुचराजी रोड पर स्थित नानजी चैम्बर के पहले मंजिल पर रहने वाली पूर्वी राणा नाम की महिला को पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है. पूर्वी राणा के साथ मौजूद इम्तियाज जुमासा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बड़ौदा एसओजी पुलिस की टीम ने जानकारी मिलने पर पूर्वी राणा के घर पर छापेमारी की, जहां से उन्हें ड्रग के पाउडर और सिरिंज मिली. 8 थैलियों का दाम 48,100 बताया. साथ ही 24,000 के इंजेक्शन बरामद किए गए. वहीं इम्तियाज जुमासा के पास से 93,800 का एमडी ड्रग और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया.
जिनकी कुल कीमत 1,20,000 रुपये बताया जा रहा है। इससे पहले भी 2018 में इम्तियाज़ को ड्रग के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 3 लोग शामिल हैं। मोहम्मद सफ़ी मिक्स नशा जो ड्रग पूर्वी को सप्लाई करता था, फिलहाल वो पुलिस की चपेट से बाहर है। वडोदराना माननीय पुलिस कमिश्नर श्री द्वारा NDPS ने लगत केसों करी आ बधी नाबूद करवानी सूचना वडोदरा शहर पुलिस ने आपवामां आवेल छे। आ अनुसंधाने SOGना हेड कोन्स्टेबल मनोजभाई ने बातमी मळेल, जे अनुसंधाने SOG PI श्रीनी आगेवानीमां टीम बनावी पूर्वी राणा नामनी कारेलीबागमां रहेती ईसમને त्यां रेड करवामां आवेली। रेड करता 96,000 थी उपरांतना NDPS ने लगत मुद्दामाल मળી आवेल छे। पूर्वी राणा तेमज इम्तियाज दीवान नामना 2 शख्सोने स्थल परथी एरेस्ट करवामां आवेल छे। बंने आरोपीओनी अटक करी 3 दिवसना रिमांड मेळवी आगळना पूर्व इतिहास चकासणी करी अने अन्य आनुषंगिक पुरावाओ एकत्रित करवानी कार्यवाही हाल चालूमां छे। प्राथमिक तपास दरमियान जाणवा मळेल विगत मुजब मोहम्मद सफ़ी नामनी व्यक्ति पासेथी आ बंने NDPS ने लगत मुद्दामाल मेळवता पूर्वी राणाना मकानमा राखता અને ત્યારબાદ બંને પોતપોતાની રીતે છૂટક વેચાણ કરતા। આરોપીનો ઇતિહાસ તપાસતા છેલ્લા 3 વર્ષથી આ કામગીરી આ ગુના સાથે સંકળાયેલ હોવાનું ખુલવા પામેલ છે। અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ રકમનો મુદ્દામાલ ખરીદતા હાલમાં પોલીસને જે મુદ્દામાલ હાથ લાગેલ છે તેની કિંમત 96,200 રૂપિયાની કિંમત છે। તપાસ ચાલુ છે। આરોપીઓ હાલમાં રિમાન્ડ હેઠળ છે અને રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ સંપૂર્ણ વિગત જણાવવામાં આવશે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। शहर में दूसरे चरण के टीकाकरण की हुई शुरुआत। शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और गोत्री अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने लिया कोविशील्ड का टीका। FGI के 16वें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस समारोह का आयोजन। LMB ग्रुप के चेयरमैन चिरायु अमीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बत्तीसवें मार्ग सलामती सप्ताह की आज से शुरुआत। बाइक रैली के जरिए ट्रैफिक नियमों की जागृति फैलाने की गई पहल। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे नए खबरों के साथ। तब तक BRG टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।